اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ حجرات کی آیات نمبر 6 تا 8 پڑھی تھیں اور آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 5 میں آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا اور آیات نمبر 6 تا 8 میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کا بیان تھا، اور آج آیت نمبر 9 اس سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وا کا مطلب اور، اس کو عربی گرامر کے مطابق حرف عطف کہتے ہیں، حرف عطف۔ واو اور، ان اگر، طائفتانی یہ طائفہ کی جمع ہے، طائفہ ایک گروہ، طائفتانی دو گروہ، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وَإِن طائفتانی اور اگر دو گروہ، من سے، المومنین مومنوں میں سے، اگر مومنوں میں سے یا اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ، اقتتلوا لڑائی کر لیں، فَأَصْلِحُوا فا کا مطلب پس، اصلحوا اس صلح کرا دو، بینہما بینہ درمیان، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے ہم، تو ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، ان دونوں کے درمیان۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو عام مسلمانوں کا کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ عام مسلمانوں کو فَأَصْلِحُوا پس صلح کرا دو، بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، بغت کا مطلب ہے بغاوت پر اتر آئے، زیادتی کرے، احداہما احدا ایک اور ہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ایک، علا پر، الاخری دوسرے پر، اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتلوا التی تبغی فقاتلوا فا کا مطلب پس، قاتلوا تو تم لڑائی کرو، التی اس سے جو، تبغی بغاوت کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تفیع وہ لوٹ آئے، وہ پلٹ آئے، وہ رجوع کر لے، الہ کی طرف، امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس ان دو گروہوں میں سے اگر ایک گروہ دوسرے پر چڑھائی کر ڈالے، اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر کے ساتھ زیادتی کرے، تو پھر جو صلح کرانے والے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان دو گروہ سے ہٹ کر، تو ان کا پھر فرض کیا بنتا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پھر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو جو بغاوت کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تفیع الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ بغاوت کرنے والا یا وہ زیادتی کرنے والا گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَات فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، فَاءَت پس اگر وہ لوٹ آئے، اگر وہ واپس آئے، اگر وہ پلٹ آئے، اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا فا کا مطلب پس، اصلحوا تو پھر صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں کیا حکم دیا گیا ہے میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑائی کر لیں، آپس میں لڑ پڑیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔
फ़इम बगत इहदहुमा, पस उन दोनों में से इहदहुमा एक बगावत करे अलल उखरा दूसरे पर, यानी उन दोनों में से एक गिरोह अगर दूसरे पर ज़्यादती करे तो फिर फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, तो फिर तुम ज़्यादती करने वाले के साथ लड़ाई करो, हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस आ जाए। फ़इन फ़ात, पस अगर वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस आ जाए तो फ़अस्लिहु बैनहुमा, फिर उन दोनों के दरमियान बिल अदल, अदल के साथ सुलह करा दो, व अक्सितु, और इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अब ये जो पिछली आयत थी उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आदाब बयान किए गए हैं और ऐसे तमाम अमाल से बचने की तलकीन की गई है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ पहुँचे या जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुँचे। तो इसके बाद की जो आयत थी उसमें आम मुआशरत के, यानी आम मुआशरे में जो एक दूसरे के साथ आदाब व अहकाम होते हैं, चाहे उनमें इज्तमाई हों और चाहे उनमें इनफरादी हों, दोनों तरह के आदाब और बामी हकूक़ का बयान दिया गया था। और इन सब में बात एक ही है, कदर मुश्तरक एक ही है कि इज़ा रसानी से इज्तनाब करना है, यानी कि ऐसे अल्लाह ताला ने आदाब मुआशरत सिखाए हैं कि एक दूसरे को तकलीफ़ से बचाना है। तो अब इसमें भी क्या हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों के दो गिरोह अगर आपस में लड़ पड़ें तो फिर आम दूसरे मुसलमानों को ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए कि उन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह करा दें और फिर ये देखें कि हक़ पर कौन है और ज़्यादती करने वाला कौन है। जो हक़ पर हो उसका साथ दें और जो ज़्यादती करने वाला हो उसके साथ लड़ाई करें। और उसमें उस लड़ाई का चूँकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और इसलिए ये वाजिब भी है और ये जहाद के हुक्म में भी आता है। तो इस और उसके साथ उस वक्त तक लड़ाई करते रहें जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस लौट ना आए, और जब फिर अल्लाह के हुक्म की तरफ वो वापस लौट आए तो फिर उन दोनों गिरोहों के दरमियान तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अदल करो और इंसाफ करो, और बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अब इसमें जो असूल, इससे जो नतीजा निकलता है इस आयत से, उससे मुराद ये भी हो सकता है कि दो ख़ानदान अगर आपस में लड़ पड़ें या दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ें या दो मुआशरे के अफराद आपस में लड़ पड़ें या दो अक़वाम आपस में लड़ पड़ें या दो ममालिक आपस में लड़ पड़ें, तो इस तरह तीसरे का जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि उनके दरमियान सुलह करा दें। जी, आयत नंबर 10, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, इन्नमा बेशक, अल मुमिनूना मोमिन, इख्वतुन भाई भाई, बेशक सब मोमिन भाई भाई हैं। फ़अस्लिहु बैना अखवैकुम, फ़ा का मतलब पस, अस्लिहु सुलह करा दो, बैना दरमियान, अखवैकुम अपने भाइयों के दरमियान, पस तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और वत्तकु और डरो, अल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम लअल्ला ताके तुम पर तुरहमून रहम किया जाए, और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये जो आयत है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ये अखुवत और भाईचारे का दर्स दे रही है और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, तमाम दुनिया के मुसलमानों की एक आलमगीर बरादरी को जो है ये आयत कायम करती है कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो हैं वो क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं। और इसी से है कि हदीस पाक भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की दुनिया जितने भी मुसलमान हैं वो जज्दे वाहिद की तरह हैं, यानी एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है तो सारे का सारा जिस्म बीमारी में और बुखार में मुब्तला हो जाता है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि किसी मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है और उससे जंग करना जो है वो कुफ्र है। अब इसमें अखुवत का दर्स दिया गया है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं, और कहीं पर भी अगर मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो तो फ़अस्लिहु बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान जो है वो सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रामर की रूह से देख लेते हैं कि व इन ताइफ़तान मिनल मुमिनीना, वा का मतलब और वा हरफ अत्फ़ है, इन जो है वो हरफ शर्त है, ताइफ़तान दो गिरोह तस्निया का सीगा है, मिन जो है ये हरफ जार है,
एक ततलू ये फ़ेल माजी का सीगा है। फ़अस्लिहू फ़ा का मतलब पस, अस्लिहू सुलह करा दो, तो ये क्या है, कोई काम करने का कहा जा रहा है, और जिसमें किसी काम करने का कहा जाए वो कौन सा फ़ेल होता है, फ़ेल अमर होता है। और इसी तरह इसके बाद आता है अला, अला जो है ये हरफ जार है। फिर देखें फ़कातिलू, फ़अस्लिहू फ़कातिलू ये एक जैसे हैं, फ़कातिलू तो ये भी फ़ेल अमर है। अल्लती तबगी हत्ता, हत्ता जो है ये हरफ जार है। तफ़िया इला, इला भी हरफ जार है। और हरफ जार से क्या मुराद है, हरफ जार से मुराद ये है कि जो किसी लफ्ज़ को जार देते हैं लेकिन ख़ुद से अलग से उनका कोई मफ़हूम नहीं होता। मसलन ये जो इला है ये अलग से अगर हम कोई लिखते हैं तो इला का मतलब है की तरफ, लेकिन ये जुमले के साथ मिले बगैर अपना मतलब पूरा नहीं करते, तो जुमले के साथ मिलकर ही इनका मतलब पूरा होता है। तो हरफ जार अगले लफ्ज़ को जो है वो क्या करते हैं, ज़ेर देते हैं। फ़इन फ़अत फ़अस्लिहू, फिर देखो फ़अस्लिहू आया है, फ़अस्लिहू का मतलब क्या है, ये फ़ेल कौन सा है, फ़ेल अमर। और बैनुमा बिलअदल व अक्सितू, अब ये देखें एक जैसे हैं ना सारे, फ़अस्लिहू फ़कातिलू और व अक्सितू, इन तीनों में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा करो, अक्सितू इंसाफ करो, फ़अस्लिहू सुलह करा दो, तो ये कौन सा फ़ेल है, फ़ेल अमर, यानी कोई काम करने को कहा गया है। इन्नल्लाह, इन्ना जो है वो हर्फ मुशब्बा बिलफ़ेल है, और युहिब्बो पसंद करता है, ये फ़ेल मुज़ारे है, ठीक है। अल-मुक़सितीन इंसाफ करने वाले, ये सम फ़ाइल हैं। इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू, फिर वही फ़अस्लिहू आ गया है और ये फ़ेल अमर है। बैना अख़वैकुम वत्तकुल्लाह, वत्तकू, अब ये भी फ़ेल अमर है। अब इन दो आयात में फ़ेल अमर के सीगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जी, अगली आयत इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।